Jai Hind, dear students. Today I am going to teach engineering physics, code is BS 101, EM theory. So I am Dr. Bimlesh Misra from Ajay Kumar Garg Engineering College, Department of Applied Science and Humanities. So today I am going to teach Maxwell's equation. So Maxwell equations are very important equation. Basically, they are backbones of EM theory. So there are four Maxwell's equations. First one is divergence of electric field is equal to rho upon epsilon naught. So rho is volume charge density and epsilon is permittivity of medium. The second Maxwell equation is del dot B is equal to 0. Divergence of magnetic field is 0. That's why it is called solenoidal. So magnetic field is always solenoidal in any medium. Third Maxwell equation is curl of electric field is equal to del B by del T. Curl of electric field is equal to minus del B by del T. So here electromagnetic induction come into the picture. We can understand by time varying magnetic field we can generate electric field. And fourth Maxwell equation is del cross B is equal to mu J plus del D by del T, or we can write mu J epsilon del E by del T. So here D we have taken D is equal to epsilon E. D is electric displacement vector and E is electric field vector. Mu is magnetic permeability, epsilon again permittivity of the medium. So these four equations are known as Maxwell's equation. Here the contribution of Maxwell is in this only this in fourth equation. So basically this first equation is nothing but Gauss law of electrostatics, and second equation is Gauss law of magnetostatics. Third equation is Faraday law of electromagnetic induction. Fourth one is basically modified Ampere-Circuital law. So modified Ampere-Circuital law. If we consider only Ampere-Circuital law, Ampere-Circuital law, Ampere-Circuital law क्या है? Ampere-Circuital law है B dot dl, line integration of magnetic field around a closed curve C is equal to mu 0 या mu I, mu 0 or mu I. I is the current enclosed by this closed path C, this closed curve C. So I is current passing through this loop. So this is Ampere-Circuital law. If you convert this equation into differential form, we get del
cross B is equal to J. So this is modified, this is differential form of Ampere-Circuital law. So this is integral form of Ampere-Circuital law, this is Maxwell form of, differential form of Ampere-Circuital law. तो मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल modified this Ampere-Circuital law and from there he derived fourth Maxwell equation, which is del cross B is equal to, यहाँ म्यू भी आएगा, म्यू J plus epsilon del E by del T. So this term basically refers to displacement current. So Maxwell ने displacement current को जो है आविष्कार किया इसका, displacement current क्या होती है. तो according to Maxwell नॉर्मल करंट क्या होती है, नॉर्मल करंट ये है, करंट आई है अगर किसी वायर में फ्लो कर रही है, देन इसके चारों तरफ सराउंडिंग में कहीं भी आप अगर देखोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी. एक वायर है, इसके चारों तरफ क्या है, आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो फैराडे ने क्या सोचा, फैराडे ने ये सोचा कि अगर कोई वायर ले लिया जाए और उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो, मतलब इस वायर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए, तो क्या इससे करंट फ्लो होगी. तो यही फैराडे लॉ है, फैराडे ने इसी तरह इसको डिस्कवर किया. तो बेसिकली अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट है. सो दिस इज द कंक्लूजन. तो मैक्सवेल ने क्या बोला, मैक्सवेल ने कहा अगर आप टेक ए कैपेसिटर सर्किट, connect to a AC source, this is load resistance R, this is AC source and this is capacitor C. तो जो नॉर्मल करंट फ्लो कर रही है इन द वायर, दिस इज कंडक्शन करंट IC, और here in between this capacitor plate a current ID is flowing. So it cannot flow because there is no free electron. So that's why it is called as displacement current. So displacement current, जब हम इसको derive करेंगे displacement current density को JD, तो JD आता है epsilon del E by del T. अगर यहाँ मीडियम एयर है तो ये हो जाएगा epsilon 0. तो ये मैक्सवेल ने डिराइव किया. एप्सिलॉन 0 del E by del T. तो यही है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट. तो ये है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी. डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी JD. तो मैक्सवेल ने यही टर्म से मॉडिफाई किया एम्पियर-सर्किटल लॉ को, और फिर आया फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन. तो ये है मैक्सवेल की डिस्कवरी. तो मैक्सवेल ने ये बताया अगर करंट टाइम के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम के साथ वैरी कर रही है तो क्या होगा, तो इस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगी. तो इसके चारों तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी. क्यों, क्योंकि यहाँ AC से जो यहाँ पे चार्ज है, चार्ज फ्लक्चुएट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करने से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा. तो इसका मतलब इफेक्टिवली ये करंट फ्लो कर रही है. तो दैट करंट इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट करंट. So today we are going to derive third Maxwell equation and fourth Maxwell equation. So before the derivation of Maxwell equation, we consider two important theorems. So first theorem is Stokes curl theorem,
और सेकेंड इक्वेशन थ्योरम इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो हम लोग दो थ्योरम लेके चलेंगे। फर्स्ट वन इज स्टोक्स कर्ल थ्योरम और सेकेंड वन इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इन दोनों थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे हम जब हम मैक्सवेल इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो स्टोक्स कर्ल थ्योरम क्या है? A डॉट dl ये है स्टोक्स कर्ल थ्योरम या सिंपली स्टोक्स थ्योरम बोलते हैं। तो स्टोक्स थ्योरम क्या करती है? लाइन इंटीग्रेशन को किससे कनेक्ट करती है? लाइन इंटीग्रल कनेक्ट करती है सरफेस इंटीग्रेशन से। तो लाइन मस्ट बी क्लोज्ड। तो अगर कोई क्लोज्ड लाइन है सी, तो इससे एसोसिएटेड जो ये सरफेस है, इनसाइड सरफेस, इनक्लोज सरफेस, ये सरफेस एस, यही वाला सरफेस है, दिस सरफेस इज सेम। तो अगर हम इस बाउंड्री से इंटीग्रेट करें और इस सरफेस पे हम क्या निकालें? उसी फील्ड, ए इज एनी वेक्टर फील्ड। ए क्या है? ए इज एनी वेक्टर फील्ड, कोई वेक्टर फील्ड है कोई वेक्टर फील्ड है तो उसका आप लाइन इंटीग्रेशन निकालिए। कोई क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, कर्व मस्ट बी क्लोज्ड, तभी उससे एसोसिएटेड एक यूनिक सरफेस एस होगा, अदरवाइज ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। और राइट हैंड साइड में क्या निकाला है? उसी फील्ड का कर्ल निकाला है, कर्ल। उसका क्या करना है? उसका सरफेस इंटीग्रेशन करना है। तो ये जो थ्योरम हो गई इसी को बोलते हैं स्टोक्स थ्योरम या स्टोक्स कर्ल थ्योरम, क्योंकि कर्ल लिया हुआ है, याद करने में आसानी होगी। सेकंड थ्योरम इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये थ्योरम क्या बताती है? ये थ्योरम सरफेस को कनेक्ट करती है, सरफेस कनेक्ट करती है वॉल्यूम से। इसमें क्या होता है? इसमें कोई एनी वेक्टर फील्ड है, उसका हमने क्या लिया? ए डॉट डी एस। तो कोई वेक्टर फील्ड ए है, उसका हमने कोई सरफेस है, क्लोज सरफेस, यहाँ सरफेस क्या होना चाहिए? क्लोज्ड। ये हमारा क्लोज सरफेस हो गया मान लीजिए। सो दिस इज क्लोज सरफेस एस। अब इसके अंदर एक इनक्लोज्ड वॉल्यूम होगा वी। तो ये सरफेस इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा? वॉल्यूम इंटीग्रेशन लेंगे इसी फील्ड का, लेकिन इसका क्या करेंगे? डाइवर्जेंस लेंगे। तो डाइवर्जेंस लेके जब उसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकालेंगे दोनों बराबर होगा। एंड अगेन दिस इज अप्लीकेबल फॉर एनी वेक्टर फील्ड, any vector field A. So we will use these two theorems. First one is Stokes curl theorem and second one is Gauss divergence theorem. तो इसमें हम डाइवर्जेंस लेंगे यहाँ पे कर्ल। तो पहली थ्योरम है, अगर क्लोज लाइन है, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और क्लोज सरफेस है तो उसको हम वॉल्यूम से कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। So today we are going to derive third Maxwell equation. In differential form. तो थर्ड इक्वेशन है क्या? इक्वेशन है डेल क्रॉस ई
तो ये हमको डिराइव करना है। तो ये बेसिकली जो थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है ये है फैराडे लॉ। क्या है? फैराडे लॉ है। फैराडे लॉ को लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो है क्या फैराडे लॉ? फैराडे लॉ है इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। Phi b is, so this is equation 1. Phi b is magnetic flux B dot ds. तो फैराडे लॉ क्या है? आपने इधर एक मैग्नेट ले लिया, फैराडे ने किया था, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और यहाँ एक आपने कॉइल ले लिया, उसके अंदर गैलोमीटर फिट कर दिया। अब अगर ये इसको हम मैग्नेट के पास में लाएंगे, उससे दूर ले जाएंगे, तो इससे इंक्लोज्ड जो सरफेस है उसके सरफेस के अंदर ये क्लोज्ड लाइन है, इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी चेंज होगा, तो उससे क्या होगा, इसके अंदर एक ईएमएफ डेवलप होगा इस कॉइल के अंदर और करंट फ्लो करेगी। सो दैट इज फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ में ये लॉ हो गया फैराडे लॉ, उसमें फाई बी ये हो गया, और ईएम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस ईएमएफ। सो दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो इसको हम लोग अगर कंबाइन करेंगे, इफ यू कंबाइन, सो वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 लाइन इंटीग्रेशन is equal to minus del by del t b dot ds. So here multiple variables are involved, so we are taking partial differentiation with respect to time. इसको हम क्योंकि ऑपरेटर कम्यूट कर रहे हैं, so we can change the order. This is surface along a surface S. So ये जो आ गया, this is integral form of third Maxwell equation, but we are interested in deriving differential form. So for differential form, apply कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी? इस लाइन वाले को हम सरफेस में करेंगे तभी कंपेयर कर पाएंगे। तो लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस में करना है, सो वी अप्लाई स्टोक्स कर्ल थ्योरम। अप्लाई स्टोक्स कर्ल थ्योरम। स्टोक्स कर्ल थ्योरम तो क्या हो जाएगा, जहां ए था वहां पे हमने ई ले लिया है, तो ई डॉट डी एल क्या हो जाएगा, del cross E dot ds. So from these two equations we can have so since this S surface S is arbitrary, since the surface S is arbitrary, means the above equation is valid for any surface S, hence we can conclude that curl of E must be equal to
must be equal to minus del V by del T. So this is our third Maxwell equation in differential form. So this is third Maxwell equation in differential form. और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या लिखेंगे? फिजिकल सिग्निफिकेंस में लिखेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फैराडे लॉ. स्टेटमेंट ऑफ फैराडे लॉ है, अगर ये एग्जाम में आता है तो आप इसको डिराइव करिए, और फिजिकल सिग्निफिकेंस में आता है तो आप स्टेटमेंट फैराडे लॉ है. फैराडे लॉ क्या है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट इज इक्वल टू माइनस del B by del T, where this phi B is magnetic flux enclosed by the coil surface S. Okay. So next topic is derivation of fourth Maxwell equation in differential form. So Maxwell equation के जो differential form है that are more important than integral form. So ये क्या है? मैंने बताया कि ये del cross B is equal to mu J plus epsilon del E by del T, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mu, इसको JC लिख दीजिए, इसको JD. So JC is conduction current and JD is displacement current. इस टॉपिक को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. So today we are going to stop here. Thank you. जय हिंद.